Good afternoon. I am Dr. Kiran Tavlare, Shri Ayurveda College, Nagpur, working as the assistant professor in the department of Kriya Sharir. First of all, I am very much thankful for giving me opportunity for presentation. My sincere gratitude towards Dr. Usha Radke ma'am, Dean VSPM, Vice Dean Dr. Shinoy sir, PhD Cell Chairperson Dr. Shinoy ma'am, moderator, today's moderator Dr. Dive ma'am, workshop coordinator Dr. Urunda Kolte ma'am and Chetna Makdi ma'am. Today's my topic of presentation is publication ethics. Actually, it is very important topics after completion of PhD and during PhD also. Okay. Now we will start one by one. First of all, Gerard Piles said that without publication, science is dead. That's why we will discuss on this important topic. Okay. Objective of today's session is, after completion of this session, all participants should be able to know about the research misconduct, ethical issues during publication, what is meant by citation index, journal impact factor or metrics, indexing databases, how many indexing databases are available, predatory journal, what is meant by predatory journals, and author impact metrics or author impact biometrics. First topic we will cover research misconduct. Okay, what is meant by research misconduct? First will, why should publish? Publish करने की क्या जरूरत है, हमें क्यों हम publish करते हैं? There are so many reasons for the publication, like that progress of science, for achieving goals, sanctioning project grant, and last but very important for ourselves, that is improve or fulfill the API score, means academic performance index. What is good journal? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज गुड और दिस इज बैड? ओके, तो टू पब्लिश वी नीड अ गुड जर्नल. What are the qualities of good and correct journal for our publication? It should be easily searchable. Okay. It should be peer reviewed. Without peer reviewed, there is no control in scientific communication. Reviewer are the backbone of whole process. Always remember, reviewer is very important in all this process. Again, having index, open access, good journal ranking, easy submission process, national and international वर्ड्स नो मीनिंग. सब कुछ जर्नल होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल ये वर्ड पुटअप करते हैं, पर उसको कोई मीनिंग नहीं है. बेसिक मीनिंग है कि क्या वो इंडेक्स है, रैंकिंग उसका, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एंड नॉन एक्सेप्टेंस रेट. अगर हमको उसका एक्सेप्टेंस रेट पता है तो हम उसमें उस जर्नल में डालना है नहीं डालना ये हमको आइडिया आ जाती है. हाउ टू सिलेक्ट जर्नल. जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, पूरा पेपर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया. नेक्स्ट स्टेज है हाउ टू सिलेक्ट जर्नल. तो उसके लिए देर आर सम टूल लाइक अ जर्नल फाइंडर, मैन्युस्क्रिप्ट मैचिंग टूल. फर्स्ट वन इज जैन, जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर. दिस इज ओनली इज फ्री, टोटली फ्री सॉफ्टवेयर. ओके, सेकंड वन इज इनहांस जर्नल सॉफ्टवेयर. फिर एंड नोट, दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट मैचर. क्लैरिवेट का, ये जो है ना, ये क्लैरिवेट का है, वेब ऑफ साइंस, उसी का ओनरशिप है एंड नोट को. Elsewhere journal finder, ये publisher specific है. This is publisher specific. Means if you find in elsewhere, we can find only those journal which having by the elsewhere, and like that Sprinkler also same. And last one, WOS, that is the Web of Science. Web of Science is also provide this facility, manuscript matching. Okay. Last one, think, check and submit approach. What is meant by think, check and submit approach? Okay, first of all we shortlist journal and choose only one journal. Read guideline, take help from the senior or supervisor or our colleague. They can give good suggestion and then submit. This process is called think, check and submit approach. And this is labeled as think, check and submit approach. Ultimately we are follow this approach, no doubt. First of all, we see demo, and a very short demo of manuscript. This is the website for journal author name estimator, Jan
First of all, we copy our abstract. Okay, now I copy my abstract. Yes, then paste in this box. Okay, paste. After that, find a journal. You click on this button, find journal, find author, and find articles. If you click on find journals, you find like that. Find, yes, this is a journal list. Which journal having the similar abstract or similar paper like your paper. You can observe this list, and also giving the article influence is also there, and show directly, you can show the direct article and website of that journal. Second, if you want to find author's name, you can find author's name. And last one is you can directly find articles also which is similar to your articles. Okay, so this is very handy and freely available tool for manuscript matcher, JAN. ओके, जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर. तो इसके अलावा जो बाकी है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ आई एम अगेन शेयर माय पीपीटी. रादर देन दिस, एनहांस जर्नल सिलेक्टर है, एंड नोट है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है. ओके, एनहांस जो है वो $495 पे करता है. ओके, stable connection. Next, why misconduct? Okay, first of all we find out. Now madam, now okay madam, you heard me? हेलो. ओके, हाँ हाँ, वो क्या होता है जब हम ये शिफ्ट करते हैं ना, थोड़ा स्विचिंग करते हैं, तो तब हो सकता है थोड़ा सा. ओके, तो पॉसिबल रिसर्च मिसकंडक्ट है ना. तो रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म, मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा आगे. ओके, देन फॉस्टरिंग, ब्रिंग अप अदर मैन्युस्क्रिप्ट एज ए ओन इज कॉल्ड फॉस्टरिंग. इंटेंशनली एंड नॉन इंटेंशनली. लोग तो इंटेंशनली करते हैं प्लेजरिज्म, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि नॉन इंटेंशनली. ओके, ultimately outcome of the research misconduct is damage the author image and institution image, damage the science, getting wrong medication to patient, loss of trust in journals and research. Ultimately outcome of the research misconduct is increase the academic pollution. Why misconduct? लोग मिसकंडक्ट क्यों करते हैं? Why misconduct? First one is फैकल्टी सिलेक्शन प्रोसीजर है, या कंपलसरी फॉर पब्लिकेशन, इंक्रीमेंट है, एपीआई कंप्लीशन, और पेरिश और पब्लिश और पेरिश कॉन्सेप्ट है, करो या मरो. अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, है ना. फेम भी चाहिए, लेकिन लैक ऑफ टाइम. ओके, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. प्रमोशन, रिवार्ड्स, नॉट ट्रेन फॉर राइटिंग. तो इसके लिए हम कभी कभी मिसकंडक्ट होता है या करते हैं. ओके, सम यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ काउंट रिसर्च इन प्रेडेटरी जर्नल्स. दिस इज वेरी important thing. I share two example for that. William Summerlin, 1974, he did the work on patchwork of mice, applied the white patch on the screen of black mice and to show the immunological tolerance. He get fantastic result, but lab assistant have some doubt how to change the skin color from white to black. He found that actually he did the color on that patch. This is a famous misconduct, example of misconduct. Second example, Andrew Wakefield, 1998, he showed that MMR vaccine cause autism. Which cause autism? It is not true actually. This false statement needs more than 10 years to remove from the scientific community. How to avoid misconduct? Okay, there is no perfect method for avoiding misconduct. Actually, honesty is the best policy in such type of issues. But rather than this, there is a need for appropriate punishment. I think appropriate punishment, university dean, principal office must investigate the misconduct. Include ethics in UG and PG education for better result in future. There is one of the good solution to avoid misconduct is notify on university website information about fake or predatory पब्लिशर्स एंड जर्नल. अगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ही
इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए कि फेक जर्नल की लिस्ट ये है, दिस इज predatory journals and you do not write for this, so then it is very easy. Ethical issues. There are various multiple ethical issues. All these ethical issues use guideline with the help of these 4 committees. Okay, these are well-known committees which use guideline for publication and misconduct also. Complete guidelines setup. First one is COPE, Committee on Publication Ethics, WAM, World Association of Medical Ethics, and ICMGE, that is International Committee on Medical Journal Editorials. OSPA, Open Access स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन. ये चारों जो कमिटियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे आगे आएंगी. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म मीन्स, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली प्लेजरिज्म किसे कहते हैं. ओके, देखो, आपने दूसरों की आइडिया या थॉट्स कुछ भी अगर कॉपी किया तो ये प्लेजरिज्म होता है, ये सबको पता है. लेकिन हम कॉपी भी अगर करते हैं तो हमको उसकी लैंग्वेज चेंज करना है, पहला मतलब वो हमारे वर्ड में लिखना है, और सेकंड उसको आपको साइट करना है, प्रॉपर साइटेशन करना है, प्रॉपर रेफरेंसिंग करना है. ओके, तब ये प्लेजरिज्म नहीं होता है. अब देखते हैं कि प्लेजरिज्म के कौन से टाइप्स है और कब कब होता है. कभी अननोनली होता है, कभी नोइंगली होता है. ओके, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली. प्रेजेंटिंग अनदर ओरिजिनल थॉट्स और आइडियाज एज योर ओन. ओके, फॉर अवॉइडिंग प्लेजरिज्म डोंट कॉपी पेस्ट, rewrite in your words, giving proper referencing and citation. Accept definition, guideline, and some facts, and we can use as it is. PhD dissertation के लिए 4 लेवल की है प्लेजरिज्म की. लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. 0 में अप टू 10% एक्सेप्टेड है, अप टू 10% सिमिलरिटी अगर तो एक्सेप्टेड है. लेकिन लेवल 1 में 10 to 40% तक रिवाइज विद इन 6 मंथ, आपको 6 मंथ दिया जाता है उसको रिवाइज करने के लिए. लेकिन 40 to 60 होगा तो डिबार्ड फॉर 1 ईयर, एंड अगर आपको सुपरवाइजर भी होने का चांस नहीं मिलता 1 ईयर तक, लाइक दैट. एंड लेवल 3 अबाउ 60% कैंसिल द PhD रजिस्ट्रेशन और एमफिल जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कैंसिल करने का प्रावधान है. दिस इज अ फ्लो चार्ट शोइंग द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज अ deliberate copy paste. That is also called a clone plagiarism, yeah, verbatim plagiarism. This type of a textual plagiarism refers to copying other works and presenting your own works. दूसरों का वर्क खुद का कहना, okay, with or without acknowledging the original source. अगर आपने साइड भी किया ओरिजिनल सोर्स तो भी दूसरे का लिया, कॉपी होगी plagiarism. Second one is paraphrasing plagiarism. Most common type of plagiarism. Basically, paraphrasing itself is not a plagiarism. Understand? Paraphrasing itself is not a plagiarism if you properly cite your source. रेफरेंस दिया, साइट किया प्रॉपरली तो. लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट वन कि सिंपल पैराफ्रेजिंग, जहाँ पे हम वर्ड स्विचिंग करते हैं, है ना, सिंपल पैरा स्विचिंग होता है सिंपली, या चेंजिंग सेंटेंस या कंस्ट्रक्शन वर्ड का चेंज करना. सेकंड वन होता है मोज़ेक और हाइब्रिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैच वर्क प्लेजरिज्म. इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन मल्टीपल रिसर्च पढ़ते हैं कंबाइनली, और उसको चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ सेंटेंस, रिप्लेसिंग वर्ड, सिनोनिम्स, समटाइम उसका टेंस, है ना, लाइक दैट. तो मल्टीपल पढ़ के उसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ऐसे हो तो उसको कहते हैं पैच वर्क प्लेजरिज्म और मोज़ेक प्लेजरिज्म. नेक्स्ट वन इज अ मेटाफर प्लेजरिज्म. मेटाफर, ऑथर यूज अदर्स आइडिया इन क्लियर एंड बेटर वे. समटाइम ऐसा होता है कि दूसरों की जिसकी बेसिक आइडिया है उससे भी अच्छे से दूसरा कोई लिख सकता है. ओके, इट्स कॉल्ड मेटाफर प्लेजरिज्म. साइटिंग इनकरेक्टली, आपने लिखा तो है सब, साइट भी किया है, रेफरेंस भी दिया है, लेकिन इनकरेक्ट दिया है. ओके, ग्लोबल प्लेजरिज्म, मीनिंग यूजिंग समवन एल्स वर्क, समवन वर्क्स यूज्ड आफ्टर ही और सी पासिंग ऑफ, is called global plagiarism. Next one, retweet plagiarism. मतलब cite here author cites a reference properly but very similar in the original one. Similar से ही original होता है, इसलिए retweet same बोला है, जैसे इसने बोला वैसे, इसको retweet plagiarism. Idea plagiarism. Idea plagiarism, it's here idea or solution borrowed from the other and claiming as own.
है ना। जैसे ये दूसरे की बारों की और कह रहे हैं कि ये हमारा वर्क है, तो इसको आइडिया प्लेजरिज्म। आइडिया प्लेजरिज्म बहुत होता है इंडिया में, है ना। सेल्फ और रिसाइकल प्लेजरिज्म, आजकल तो इतना ज़्यादा सेल्फ प्लेजरिज्म है कि खुद का ही जो आर्टिकल है पिछला, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो कैसे नेक्स्ट इसमें इंक्लूड हो हमारे आर्टिकल में। ओके, तो सेल्फ प्लेजरिज्म, अभी यूजीसी ने रूल किया है कि सेल्फ प्लेजरिज्म काउंट न करते हुए आपको आपका एच इंडेक्स देना है। कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर आपको देना है तो एच इंडेक्स काउंट में सेल्फ प्लेजरिज्म अवॉइड करना है। साइटिंग और नॉन एग्जिस्टिंग सोर्स, बहुत बार हमको 404 एरर आता है ना। 404 एरर मीन्स कि आपने साइट किया है पर वो सोर्स एग्जिस्टिंग नहीं है, इसको 404 एरर। नेक्स्ट इज एंटी प्लेजरिज्म टूल्स। अभी प्लेजरिज्म अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल है, कुछ ओपनली अवेलेबल है और कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सम ओपनली आर अवेलेबल बट नॉट कंप्लीटली फ्री, ओनली वन इज फ्री, दैट इज duplichecker.com, है ना। वी विल सी वन स्मॉल डेमो, बट लास्टली because if we mix up in our session, then maybe interrupt our link. Second is the plagiarismchecker.com, है ना, quicktest.com, प्लेजरिज्मा भी अच्छा 3 मंथ $25 में अवेलेबल है ना, और 1 डे के लिए चाहिए तो क्विक टेस्ट भी अवेलेबल है $1 लाइक दैट, है ना। एक न्यूली एक आया है इसमें scriber.com, ये 2019 का प्रोडक्ट है ना, 2019 का प्रोडक्ट है scriber.com. It is also very good, but it charge some amount. I think 1400 pages takes something 1500 rupees like that. Okay. Next, rather than this, some others also available like a PlagScan, CopyLeak. Okay. But DupliChecker is simple for use. There is only thing is important. You can use only 100 words at a time. Okay. Next one is commercial product. Commercial means several universities and publications house use this commercial anti-plagiarism tools. Very famous tools. First one is Turnitin, Authenticate, Urkund. Urkund use data from the Shodhganga. Urkund जो है वो शोधगंगा का डाटा यूज करता है, maintained by InflipNet. InflipNet that is library center है InflipNet. And MUHS also use this Urkund, MUHS. Okay. Mostly universities having Urkund because ये freely available था Urkund तब. Turnitin and Authenticate use by publication houses. Okay. ScanMyEssay.com, very famous for the name of Hyper, and PlagTracker.com. Next, there are some terms for the misconduct, that is falsification and fabrication. What is meant by falsification? Falsification means manipulating of data. Okay, sometime if we complete our 996 cases, we will round it up in 1000. This is called as falsification. Okay, or changes in the photographs with the help of any software is called falsification. Second one is fabrication. Fabrication means cooking of data. Even not seen a single patient, whole data cooked in a shade is called fabrication. Next is salami and IMLAS publication. Salami means multiple paper from a large study. Generate multiple paper from large study. मतलब half up करते and a form of self plagiarism. Second is IMLAS. IMLAS means multiple paper having same hypothesis with incremental data. Means कि जैसे हमारे 200 पेशेंट है, ओके 200 पेशेंट है, 50 फिर 100 फिर 150, ऐसे अगर हम पेपर पब्लिश करते गए तो हमारा हाइपोथेसिस सेम रहेगा, है ना। तो इस टाइप का अगर पब्लिकेशन आप करते हो तो इस कॉल्ड IMLAS पब्लिकेशन. दिस इज मिसकंडक्ट. ओके, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट. सलामी exactly opposite to IMLAS in spelling also. Okay, this is opposite for each other. Next, failure to publish. Okay, people do not dare to publish negative result. That's why negative result are rarely published. Duplicate or redundant publication due to academic race and promotion. But at the same time, output is waste of time. Next is authorship problem. अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑथर कौन होना चाहिए. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑथरशिप प्रॉब्लम्स, कि इसमें कैसा कुछ गेस्ट ऑथरशिप होती है.
गेस्ट मीन्स जो सीनियरिटी के हिसाब से आती है, ओके, कि भाई सीनियर है तो नाम डालना है, रेपुटेशन इन्फ्लुएंस है उस बंदे का तो उसका नाम डालने के बाद पेपर एक्सेप्ट होता है, लाइक दैट गेस्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप हायरार्की होते हैं, कुछ कलीग होते हैं, मैं तेरा नाम डालता हूँ तो मेरा नाम डाल, लाइक दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑथरशिप। एंड घोस्ट ऑथरशिप, absence of authors who contributed and professional writers sometime as per hierarchy also include ghost authorship, जो जिनका डायरेक्टली इसमें कोई रोल नहीं होता है लेकिन फिर भी ऑथर होते हैं। एज पर क्राइटेरिया ऑफ ICMJE recommends 4 criteria for authorship, है ना, who involve or fulfill these criteria is an author, है ना। These 4 criteria, first is concept, design, analysis and interpretation, जिस ऑथर का हो, एंड नॉट और एंड रिमाइंड, एंड ड्राफ्टिंग एंड रिवाइज ड्राफ्टिंग, एंड फाइनल अप्रूवल which will have the power to give the final approval, and accountable for accuracy and integrity of the any part of her or his work. Okay, this when we combine these 4 criteria, you know, then and only then this is fulfill the criteria for author. Dr. V.K. Kapoor in Lancet gives very good term polyauthoritis gyptosa. Polyauthoritis gyptosa. Sometimes we see excluding the deserving people as author and other people include in that list. Co-author, most of the time co-author is HOD और family member, अगर दोनों सेम प्रोफेशन से है तो समटाइम फ्रेंड्स, एंड जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये गर्ल्स का भी ऑप्शन ट्राई करते हैं कि कहीं नसीब अच्छा हो जाए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो ऑथर एंड को ऑथर दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर इज वन टेबल, है ना, यू सी ऑन योर स्क्रीन। इन्वॉल्वमेंट इन द स्टडी लो एंड हाई, इन्वॉल्वमेंट विथ मैन्युस्क्रिप्ट लो एंड हाई। इफ बोथ आर लो, not include even acknowledgement. If include in anyone, you can include her or his name is acknowledgement. Okay, and when and only when person help in both involvement in study as well as manuscript preparation involvement, then and only then you can involve his or her name in list as author. Okay, this is the clinical trial registration. Most of the people know only www.clinicaltrial.gov, है ना, this website, है ना, but ICMJC accept the registration in the following registries also. अगर किसी भी इस पे आप रजिस्टर्ड किया, ये नीचे जितनी लिस्ट दी है, तो भी आपका पेपर नेशनल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है। Predatory journals, that is also called as the pseudo journal or dubious journal, we will see later. And informed consent needs separate session. It is not our today's SLO, but it is a part of publication ethics. Next is citation index. Citation index, actually we can understand the citation of journal. Citation किसके होते हैं? जर्नल के होते हैं, ऑथर के होते हैं, एंड आर्टिकल के भी होते हैं। ओके, तो वी कैन अंडरस्टैंड द citation of journal by impact factor, है ना। ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर जैसे बहुत सारे, पर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। वी कैन अंडरस्टैंड द साइटेशन ऑफ जर्नल बाय इम्पैक्ट फैक्टर, आर्टिकल साइटेशन ऑफ आर्टिकल बाय साइटेशन इम्पैक्ट, एंड ऑथर साइटेशन बाय H index. Okay, we will see one by one, no problem. And a citation index shows a paper has how many numbers of citation is there. Last line is important only. Eugene Garfield, 1955, he founded Institute for Scientific Information, ISI. आप बोलेंगे ये क्यों याद करवा रहा, इसका कुछ लॉजिक है, मैं आगे बताता हूँ कि यूजिन गारफील्ड 1955 फाउंडेड इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ISI। उसके बाद जो ये आए थे 1955 के बाद बहुत सारे ईयर्स आए, 1873, फिर आई थिंक 1970 में साइटेशन इंडेक्स जनरेट हुआ, 1997 वेब ऑफ साइंस जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। ओके, डिफरेंस बिटवीन द साइटेशन एंड रेफरेंस, वेरी सिंपल। अगर आप मेरा पेपर का रेफरेंस यूज कर रहे हो, ओके, आपके आर्टिकल में, तो आपके लिए वो रेफरेंस है। मेरे पेपर का अगर आप रेफरेंस यूज कर रहे हो तो आपके लिए रेफरेंस है, लेकिन मेरे लिए वो वन साइटेशन है, सिंपल। ओके,
This diagram is very important. I take 2 to 3 minutes on this diagram. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि एक बार अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई कि ये सभी जो पब्लिशिंग एथिक्स है ये कैसे चलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम 2-3 मिनट देंगे और फिर आगे निकलेंगे फास्ट. ओके, जैसे ISI इंस्टीट्यूट फॉर साइंस इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा था कि यूजन गारफील्ड, ऊपर लिखा है यूजन गारफील्ड, जो 1995 में जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था. और इसी के नाम से फिर आगे SCI भी इसी का है. SCI मीन्स साइंस साइटेशन इंडेक्स. थॉमस राउटर इम्पैक्ट फैक्टर है ना. अब जो MUHR यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट फैक्टर मानती है, दैट इज थॉमस राउटर इम्पैक्ट फैक्टर. ओके, फिर यूजन गारफील्ड ने क्या किया, मतलब ISI ने क्या किया कि वेब ऑफ नॉलेज इस नाम से ओपन किया. आगे इट इज कन्वर्टेड इनटू वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस पब्लिशेस साइंस साइटेशन इंडेक्स. ओके, हु इज द ओनर? स्कॉलर, गूगल स्कॉलर इज द ओनर ऑफ SCI. ओके, देन थॉमस राउटर, जो भी नाम था, थॉमस राउटर ने क्या किया कि थॉमस राउटर सोल्ड टू क्लैरिवेट एनालिसिस. ये जितना भी था ये सब उसको क्लैरिवेट को बेच दिया. नाउ JCR, that is Journal Citation Report, is used for the standard impact factor. This is first line, ISI to JCR. And second line, Scopus. Scopus AB Cite Score है, AB Citation Index है, no doubt. Scopus, इसके ओनर कौन है? Elsevier. तो Scopus का जो जर्नल साइटेशन है, मतलब सीमैगो जर्नल रैंक है SJR नाम से, और यही SJR इम्पैक्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दो साइटेशन बॉडीज हुई, JCR है SJR. इसको याद करना भी सोपा है, एकदम इजी है. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तो ये याद हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे. जैसे इमेजिन करो कि जो यूजन गारफील्ड है वो ISI का एजेंट था. जस्ट आप इमेजिन करो, फटाफट याद हो जाएगा. ISI का एजेंट था, तो ISI उसका जो नाम था वो था थॉमस राउटर. ओके, तो थॉमस राउटर जो था ISI का एजेंट, वो साइंस का स्टूडेंट था. SCI साइंस का स्टूडेंट. हेन सी द वेब ऑफ साइंस, वो साइंस का स्टूडेंट होने से वेब ऑफ साइंस देखते रहता था, मतलब वेब पे साइंस देखते रहता था, जो भी है. वो इतना क्लेवर था, क्लेवर मीन्स क्लैरिवेट. वो इतना क्लेवर था क्योंकि वो हमेशा जय सियाराम बोलता. इतना क्लेवर क्यों था? वो हमेशा जय सियाराम बोलता था. JCR जय सियाराम, इट्स JCR. ओके, और बोलता था, तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट मतलब अच्छा होगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं. ओके, सेकंड, फिर यही जो जय सियाराम बोलना ये हो गया, उसके बाद इसका जो फोकस है ये कम हो गया थोड़ा सा, है ना. तो कोपस, तो इसका कोपस में आया. फिर ये वहां से सीमैगो जर्नल रैंक, मतलब शिमला गया एज ए सोल्जर SJR. ओके, एंड सोल्जर बनने के बाद किसको पता ही नहीं कि वो कहाँ चला गया. एनीवेयर, वो कहीं पे भी जा सकता था, एनीवेयर. तो स्कोपस, शिमला में सोल्जर, एंड एल्सवेयर, एनीवेयर कहीं तो भी चला गया, किसी को पता नहीं चला वो कहाँ है. तो ये इतना अगर हमको पता है बेसिक, तो हमको इससे ये आइडिया मिलती है कि आप कितना भी स्टडी करेंगे तो इसी वर्ड के आगे पीछे हम घूमते रहते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन क्या है. तो अभी आपको पक्का याद होगा कि ISI बोला तो SCI, दैट इज थॉमस, दैट इज वेब ऑफ साइंस, दैट इज SCI मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स, यही गूगल स्कॉलर का है. यही थॉमस राउटर था पहले, इसने सोल्ड किया क्लैरिवेट को, और अभी क्लैरिवेट बहुत फेमस है, थॉमस राउटर नहीं रहा. ओके, और JCR मतलब JCR. ओके, तो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो रिलीज करता है. नेक्स्ट इज कोपस का सीमैगो जर्नल रैंक, एंड इम्पैक्ट फैक्टर, दैट इज SJR. और ये ओनर कौन है? एल्सवेयर के अंडर ये सब काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते फटाफट, टाइम कम है. जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल मैट्रिक्स होती है. जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ एक ही जर्नल हमको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देखना है. ओके, तो जैसे व्हेन वी सॉ द लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल जर्नल्स, देन हाउ वी कैन डिसाइड which is the proper journal for our publication, how, है ना. तो there are the 3 things is important. First one is impact, second one is speed, and third one is reach. Impact, journal का impact क्या है? Impact means not only impact factor, please understand. Impact means साइट स्कोर का इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है, हाइजीन फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है, सीमैगो मतलब जो हमने लिखा था SJR, उसका इम्पैक्ट क्या है ना. इसके अलावा भी बहुत सारे वो हम देखेंगे, एक बार एक बहुत फास्ट देखेंगे. जो इंपॉर्टेंट है वहां पे हम फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको थोड़ा फास्ट लेंगे, है ना. तो इम्पैक्ट. सेकंड इज स्पीड. स्पीड मीन्स क्या है?
स्पीड क्या है? स्पीड क्या है कि आपने अगर आर्टिकल भेजा जर्नल के लिए तो कितने वीक में रिव्यू होता है, कितने वीक में पब्लिश होता है, इज कॉल्ड स्पीड. एंड रीच, लास्ट 5 years में हाउ मेनी पीपल्स डाउनलोड दिस आर्टिकल, इज कॉल्ड स्पीड. तो ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड होता है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर एंड जर्नल मैट्रिक्स कंप्लीट. ओके. तो जैसे हमने देखा था कि डॉक्टर यूजिन गॉरफील्ड 1955 है ना फाउंड इम्पैक्ट फैक्टर. फर्स्ट इज इम्पैक्ट फैक्टर सिंड्रोम. एक है, आपको सबको पता है कि एक चुल सिंड्रोम है और रियली वो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडियन लोग जो होते हैं वो गेटिंग ट्रैप्ड इनटू द विशियस साइकिल ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर विदाउट एनी अटेम्प्ट टू एक्चुअली फाइंड आउट द रियल इम्पैक्ट. रियल इम्पैक्ट क्या है हम देखते नहीं जर्नल का, इम्पैक्ट फैक्टर कितना, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. और मैं आगे बताऊंगा कि जो इम्पैक्ट फैक्टर हम देखते हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% इम्पैक्ट फैक्टर फ्रॉड है. ये हम आगे देखने वाले हैं. आवर एस्टेब्लिशमेंट इज शोइंग इंक्रीजिंग एडिक्शन टू इम्पैक्ट फैक्टर एंड एच इंडेक्स. इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का और एच इंडेक्स ऑथर का. प्लीज रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, है ना, जो जिसके लिए हम सब लोग काम करते हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर है. कि भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है. इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटेशंस in last 2 years divided by number of total number of article published in that 2 years. Very easy. JCR report journal citation report. JCR report जो है, ये जो JCR था किसका था, हमने देखा था SCI का, ओके, या वेब ऑफ साइंस का. तो वेब ऑफ साइंस का जो JCR है ये भी हमें इम्पैक्ट फैक्टर देता है, लेकिन 5 साल का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 year डाटा इज कॉल्ड JCR रिपोर्ट. ओके. एंड नॉन इंक्लूडेड एडिटोरियल लेटर्स and meeting abstract like that is not included in this report. Next one is category, मतलब median and aggregate impact factor. ये pediatric का जर्नल अगर है तो pediatric में pediatric का जर्नल कहाँ है, वो जर्नल like that. It is not very important for us. Okay, we can go fast. Next is JCR report. Again, JCR means CIMAGO journal rank. Is weighted by the prestigious of the journal based on the idea that all citations are not equally created equally. जैसे हमने इसके पहले देखा था JCR का कि 5 years का डाटा ले रहा था और ऐसा कुछ नहीं था कि सभी को एक जैसा इंपॉर्टेंस दे रहा था. ओके. लेकिन SGR क्या कर रहा है, SGR जो CIMAGO जर्नल रैंक है जो एल्सवेयर का था, यहाँ पे क्या है कि ऑल साइटेशंस आर नॉट क्रिएटेड इक्वल वेटेज. मतलब यहाँ पे साइटेशन कौन से जर्नल में हुआ है ये देखते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे SGR के साथ, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years डाटा. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. दिस इज द कोपस, अगेन कोपस, CIMAGO, एल्सवेयर, SGR. ओके. वी कैन सी क्लियरली ऑन योर स्क्रीन अ कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियन हैविंग द 72.576 SGR, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर गिवन बाय SJR. Okay. Again, Indian Pacific Electronic Journal. This is the second example. Second, how to calculate the impact. Actually हम क्या देख रहे हैं कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले देखा हमने इम्पैक्ट फैक्टर JCR and IJR, and JCR and last one is SJR. Okay. Second is site score. Site score measure average citation received per document published in a serial, है ना. सिंपल फॉर्मूला, करंट ईयर साइटेशन मतलब 2020 में कितने साइटेशन हुए डिवाइडेड बाय टोटल लास्ट 3 years पब्लिश पेपर. तो ये हमको साइट स्कोर देता है. नेक्स्ट वन इज SNIP, सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर. ये पर पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर देता है, इसलिए इसको सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर कहते हैं. ओके. SNIP. अगेन यहाँ पे आप देखिए आपको साइट स्कोर भी दिख रहा है. 2 जर्नल का एग्जांपल लिया मैंने. जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन साइट स्कोर है 1.08. मतलब यहाँ का हर एक जो आर्टिकल है वो मिनिमम 1 टाइम्स साइट हुआ है. ओके. और इसका SNIP स्कोर है 0.816. ओके. लेकिन इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो साइट स्कोर है 0.6, है ना. लेकिन ये डिफरेंस कहाँ से आया ये आप ऑब्जर्व करो. डॉक्यूमेंट, टोटल डॉक्यूमेंट अगर आप देख रहे होंगे तो आपको फर्क दिखेगा कि 2018 एंड 15 to 17 में 150 डॉक्यूमेंट्स है, वेयर एज
in Journal of Indian Pediatrics is 888. Google Scholar Metrics. Google Scholar journal metrics allow authors to view journal ranking and the rating by various age indices. बहुत सारे एज इंडेक्स दिए गूगल ने, वो हम देखेंगे जो काम के, है ना. फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल स्कॉलर H5 index. What is mean by H5 index? H index for author, remember, and H5 index for जर्नल. वेरी गुड. H5 इंडेक्स आप आपके स्क्रीन पे देखिए, आपको देखेगा नेचर जर्नल का एग्जांपल लिया मैंने 362. H5 इंडेक्स इज 362. मींस इसका मीनिंग क्या है? मींस नेचर में 362 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मिनिमम 362 टाइम्स साइट हुए. इससे कम तो बहुत है, नो डाउट. वो जो मैजिकल फिगर होती है कि 362 आर्टिकल्स and 362 times site. Okay, it's called H5 index. Okay, DIVA, ये नई टेक्नोलॉजी DIVA जो आई थिंक 2015 में आई थी, है ना, फॉर डाटाबेस इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस सिस्टम करके. यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा जाता था इस डाटा का ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग, है ना. ये पूरी टेक्नोलॉजी जैसे हम हाउस खड़ा करते हैं ना, उस जैसी टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग होती है इसकी. डाटा एनालाइजिंग एंड पैटर्न 2D विजुअलाइजेशन एनालिसिस. ये बाकायदा 2D मैप दिखा के एनालाइज करते, पर उतना ज़्यादा अभी तक तो नहीं है. लेकिन यूजीसी के एक जो यूजीसी का एक रिकमेंडेशन है उसमें इसको इन्वॉल्व किया है दिवा को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आइजन फैक्टर. आइजन फैक्टर, Eigen score adjusts for citation differences across the discipline. Okay, score are scaled so that the sum of all journal score is 100. सभी के स्कोर 100 करते हैं और उसके हिसाब से फिर उसका रेशियो निकालते हैं. रेशियो ऑफ किसका रेशियो है? तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइटेशंस टू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ओके, मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइटेशन की कितना साइटेशन का रेशियो हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ओके, ये भी अगेन कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. इट एक्सक्लूड सेल्फ साइटेशन स्कोर. आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर, एक अपने आर्टिकल का एक इन्फ्लुएंस स्कोर होता है. ओके, व्हाट इज मीन बाय दैट? तो 1 है तो एक बार हुआ है, मोर देन 1 इज गुड इनफ. ओके, तो मेजर द एवरेज इन्फ्लुएंस पर आर्टिकल. एवरेज इन्फ्लुएंस कैसे काउंट करना पर आर्टिकल का? ऑन एवरेज आर्टिकल मेजर्स पर आर्टिकल पब्लिश इन अ जर्नल फ्रॉम लास्ट 5 years अगेन. ओके, तो कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द आइजिन फैक्टर. हमने देखा अभी अभी आइजिन फैक्टर स्कोर बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल. मतलब आइजिन फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पब्लिश आर्टिकल इज कॉल्ड आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर. एक लास्ट वन होता है इमीडिएसी इंडेक्स. इमीडिएसी इंडेक्स तो मेजर ऑफ द ट्रॉपिकलिटी एंड द अर्जेंसी ऑफ साइंटिफिक जर्नल. ओके, तो ये जो होता है इमीडिएसी इंडेक्स, ये बहुत ईजी होता है. साइड टू करंट आर्टिकल, मतलब उस ईयर के, एक ईयर का होता है सिर्फ, उस ईयर के जितने भी साइट हुए आर्टिकल्स है करंटली. फॉर एग्जांपल दिया है मैंने स्क्रीन पे, 2343 साइट हुआ है. लेकिन नंबर ऑफ द करंट आर्टिकल कितने उस ईयर के टोटल पब्लिश हुए उस जर्नल में? तो 366. दैट्स वाई 6.40 इज द इमीडिएसी इंडेक्स. ये नेचर का है इसलिए सबसे हाई है, अदरवाइज इतना नहीं होता है. ओके, एक होता है अल्मेट्रिक्स. That is data collected from the various social media. Various social media platforms से अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं and consider and emerging as a new tool method for the research assessment. जैसे बहुत जगह जो डाटा होता है वेरियस सोशल मीडिया से भी डाटा लेके ये किया जा सकता है, तो इसको अल्मेट्रिक्स कहते हैं. डोरा, दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी अगेन एंड वेरी यूजफुल फॉर अस. डिक्लेरेशन ऑन रिसर्च असेसमेंट, मतलब अगर हम जर्नल का असेसमेंट करते हैं तो किस बेसिस पे करना चाहिए? डोरा, है ना. व्हाट इज मीन बाय डोरा? डोरा सेज दैट कि विदाउट इम्पासिंग द इम्पैक्ट फैक्टर, विदाउट more concentration on the impact factor, we should focus on scientific content rather than the publication metrics. मतलब सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए हमने. क्या नहीं देखना चाहिए हमने? सिर्फ कि कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर है. इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि पब्लिकेशन, उसके कंटेंट कैसे, ये भी हमने देखना चाहिए. इंडेक्सिंग डाटाबेसेस. नेक्स्ट वन है इंडेक्सिंग डाटाबेसेस. I show time first. Okay,
इंडेक्सिंग डाटाबेसेस, ये सभी इंडेक्सिंग है जो आपके सामने। ओके, क्लैरिवेट एनालिसिस, नाउ यू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लैरिवेट, वेब ऑफ साइंस एंड SCI, that is Science Citation Index. This is a famous indexing databases. Then Scopus, then PubMed, Medline and PMC. For medical field, this is very important. PubMed, Medline and PMC. Sometimes we are very confused. What is PubMed, what is Medline, what is PMC? So that's why I put up one figure. On the basis of that figure, you can easily understand what is the exact role of PubMed. Google Scholar, then Science Finder, Chemical Abstract Services, Biological Abstract, Social Science Research Network. जैसे हमारा PubMed है मेडिकल के लिए, वैसे ही साइंस फील्ड के लिए SSN-RN बहुत इंपॉर्टेंट है. DOAG, डायरेक्टरी ऑफ ओपन असेस जर्नल, DOAG एंड इम्बास, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि DOAG पे 11,000 सॉरी मोर देन 9,000 जर्नल अवेलेबल है. DOAG ओपन असेस जर्नल, तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन असेस जर्नल एंड इम्बास, ये अगर इंडेक्सिंग है तो भी अच्छा है. इसके अलावा जो शिनाल है, ER, ICH है, ये सभी अदर फील्ड के लिए, स्पेसिफिक फील्ड के लिए यूज होते हैं. नाउ वी कैन सम अप इन शॉर्ट, इम्पैक्ट फैक्टर गिवन बाय JCR, है ना, JCR. ओके, JCR याद करो, JCR बेस्ड ऑन द 5 ईयर डाटा, while SGR बेस्ड ऑन 3 years डाटा, इम्पैक्ट फैक्टर. एंड साइटेशन डाटाबेस, जो साइटेशन डाटाबेस कौन सा यूज करते हैं, वेब ऑफ साइंस and Scopus. Okay, 2. And best practices guideline for the ethical publication is COPE, WAM, ICMGE and OISPA. Okay. Next one is, there is a 2 types of journal basically, more than 2 types, but this is main types, gold and green assess journal. What is mean by gold assess journal and green assess journal? Gold assess journal means author retained copyrights. Okay, author have copyrights but giving the permission for license to publish, gold assess. and green में copyright to publisher, direct publisher को हम copyright दे देते हैं. gold assess, no subscription fees and publishers again their income by APC, article processing charges, है ना. publishers have income, lot of income from APC, but in case of green assess no APC. यहाँ पे APC नहीं होता, article processing charges नहीं होते, cost covered by the library subscription. Okay, publish versions of the article immediately accessible on public domain, whereas in case of the green open journals there is some phase, there is some time called as the embargo period. Okay, and last one is example PLOS journal. All PLOS journal is a gold open access journal, while ARXIV and SSRN and PubMed Central is a green open access journal, having green open access journal. Rather than that, there is also hybrid journal is also in between gold and green, is called hybrid journal. Hybrid means having open journal but paid otherwise subscription journal. Okay, is called as hybrid journal. And there is one thing, bronze journal. Bronze open access freely available article with no license, यहाँ पे license की जरूरत नहीं I think. और last one is black access journal, है ना, illegal open access is called black access journal. Next is predatory journal. What is the predatory journal? What is the pseudo journals? Okay, fraud journals, fake journals. Okay, how to identify the predatory journals? First, very important topic. Some journals frequently, some editors or some journals frequently call for papers, fake impact factor, claim for false indexing. Okay, send promotional mail continuously. Not a member of reputed publications ethics committee, and a COPE, WAME, like that, and use national and international word irrelevantly. For that, you can check editorial board of this journal and potential conflict of interest. Okay, this is the flow chart, and with the help of this we can assess. We can assess as this journal is a fraud or reputed journal. This is the dubious journal matrix.
जिसको हम इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं, जो इम्पैक्ट फैक्टर सिंड्रोम हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर की लिस्ट कवर किए। दिस इज द लिस्ट ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ प्रीडेटरी जर्नल एक्सेप्ट इंडेक्स कोपरनिकस। इंडेक्स कोपरनिकस भी 2013 में जो बियोल की लिस्ट थी, बियोल जो वेरी फेमस लिस्ट है, बियोल डुबेस जर्नल लिस्ट करके एन इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट। तो बियोल की जो लिस्ट पब्लिश हुई थी 2013 में, वहाँ पे इंडेक्स कोपरनिकस था, है ना। आज अगर हम देखते हैं तो आईएमए ने जो 5 जर्नल के जो नाम दिए थे, 5 डाटाबेसेस के, तो उसमें इंडेक्स कोपरनिकस है ना। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया उस पर। कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर, ग्लोबल यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, GIF, ISI, बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर है जो हम पढ़ते रहते हैं, है ना। इसके अलावा ये और ISI के अलग अलग वर्जन है ना। DOI, GIF, ग्लोबल साइंस, इंडेक्स साइंटिफिक जर्नल, ऐसे लॉट ऑफ जर्नल आर अवेलेबल, इम्पैक्ट फैक्टर अवेलेबल, फेक इम्पैक्ट फैक्टर, ओके, डुबियस जर्नल इम्पैक्ट बोलते इसको, है ना। दिस इज यूजफुल पेपर with practical guideline for publishing research, okay. ऑथर इम्पैक्ट, अब हमें देखना है कि ऑथर का इम्पैक्ट कैसे आता है, ओके। अब तक हमने देखा जर्नल इम्पैक्ट, अब हम देखेंगे कि ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर कैसे काउंट करते हैं। फर्स्ट वन इज H index. What is H index? Determine the level of your achievement with the help of H index. A scholar with an index of H has published H paper with at least H citation each. सेम जैसे मैंने आपको नेचर के वक्त कहा था, 362 आर्टिकल्स हैविंग मिनिमम 362 साइटेशंस, लाइक दैट, कि एक ऑथर के कितने पेपर है और उसके कितने साइटेशन, ये आंकड़ा मैच होना चाहिए। जैसे अगर आप आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 6 आर्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 6, 4 आर्टिकल्स हैविंग 4 साइटेशंस, okay, that's why the impact factor of this author is 4, मतलब H index is 4, understand। देखो 4 अभी लिखा है कि 4 आर्टिकल्स है जिसको 4 टाइम्स अटैच किया है, तो 4 आर्टिकल्स 4 साइटेशन, 4 इंडेक्स, 5 आर्टिकल्स 5 टाइम्स साइटेशन, 5। अगर आपके 100 भी आर्टिकल्स है ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 30 आर्टिकल ऐसे कि जिसको 30 टाइम्स साइट किया गया है, तो आपका H इंडेक्स होगा 30, ओके। कोई कंफ्यूज, एकदम इजी है, आपको डायग्राम से पहचान में आ जाएगा। 4, ओके। यहाँ पे दिया है, डायग्राम में भी दिखता होगा। एग्जाम्पल, अ साइंटिस्ट विथ एन इंडेक्स ऑफ 20 एंड हैज अ 20 पेपर साइटेड एटलीस्ट 20 टाइम्स, है ना। 20 पेपर ऐसे है जो मिनिमम 20 टाइम्स साइट हुए, इसलिए 20। नेक्स्ट वन इज G इंडेक्स। G index is not widely used actually, not widely accepted also, but G index is a shortcut, है ना। मतलब जिनको डिप्रेशन आता है H index देख के, तो उस वक्त हम G index हमारा लिख सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल तो है ना। तो जिसका H index कम होता है तो समटाइम उसका G index अच्छा हो सकता है, इसलिए ये यूज करते हैं। तो G index is the unique largest number such that the top G article received together at least G square citation। ये ऐसे पढ़ के कुछ समझने वाला नहीं है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ओके। आपके सामने एक मैट्रिक्स है कंप्लीट, यहाँ पे रैंक दिया है कि 10 आर्टिकल्स अवेलेबल है, साइटेशंस 70, फिर 12 और लाइक दैट। टोटल साइटेशन अगर आप देखते हैं, क्युमुलेटिव स्कोर, सी ऑन योर स्क्रीन, टोटल क्युमुलेटिव साइटेशन आर 114, टोटल क्युमुलेटिव स्कोर, विच स्कोर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ, ये जो 114 है ये किसका स्क्वायर है, between the square of 10 and 11, 10 square 100 and 11 square 121, ओके। तो 121 से ज़्यादा अगर होता 114 तो उसका 11 होता था, लेकिन यहाँ पे 11 से कम है, 10 से ज़्यादा है, ओके। 10 स्क्वायर 100 ना, ओके। तो दैट्स इज 100 and 121, बट 121 is greater than 114, that's why square of 11, square of 10 is 100 and total citation is 114, okay। That's why the G score or G index is 10. Author A, author B and author C, and there are the 3 examples. Observe, author A, citations, H index 6 है। 6 H index क्यों है, क्योंकि 6 पेपर ऐसे है
कि जो 6 टाइम मिनिमम 6 टाइम साइट हुए और जी इंडेक्स भी 6 आया, क्योंकि टोटल स्कोर कितना हो रहा है इसका जस्ट 43, इसीलिए। बी ऑथर अगर आप देखते हैं ऑथर बी, तो यहाँ पे बहुत है, देखो पेपर 1 2 3 4 30 70 बहुत टाइम साइट हुआ है। ऑथर बी हैविंग द 5 पेपर्स मिनिमम 5 टाइम्स साइट, ओके, दैट्स व्हाई एच इंडेक्स इज 5 बट जी इंडेक्स इज 10, है ना। वाई? बिकॉज टोटल इज 116 ना, टोटल उसकी 116 होती है जो 10 का स्क्वायर है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है और जी इंडेक्स इसीलिए यूज करते हैं कि जब हमको एच इंडेक्स कम होता है तो हम जी इंडेक्स भी दे सकते हैं उस जगह पे। नेक्स्ट इज I10 इंडेक्स क्रिएटेड बाय गूगल स्कॉलर, ओके, एंड इट इज ओनली यूज बाय गूगल स्कॉलर आल्सो। ये बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 10 पेपर मिनिमम 10 पेपर होने चाहिए जिसका साइटेशन 10 हो, इज कॉल्ड I10 इंडेक्स, है ना। द नंबर ऑफ द पब्लिकेशंस विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन, दिस इज वेरी सिंपल मेजर, ओके। मतलब कितने पेपर है जिसको मिनिमम 10 टाइम आपका साइट हुआ है, इसको I10 इंडेक्स। ग्रुप एक्टिविटी है छोटी सी स्मॉल। इसके पहले मुझे आपको एक डेमो देना था, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और एक डेमो देता हूँ। दिस इज डुप्लीचेकर वेबसाइट, है ना। ओपन डुप्लीचेकर www.duplichecker.com, then copy paste your abstract in given page, copy paste, or you can choose a file also, but copy paste your abstract and go down and check for plagiarism. When you click on check for plagiarism, it gives you a report like that. You find a report, check plagiarism. तो if journal fail to fulfill any criteria, do not check it further. जहाँ पे जर्नल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है वहाँ पे आपको ये जो चार्ट है आगे चेक नहीं करना है। जर्नल स्कोर 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स विल बी क्वालिफाइड जर्नल। ये 10 मार्क का पूरा चार्ट है, इसमें से 6 है तो जर्नल क्वालिफाइड, अदरवाइज नॉट क्वालिफाइड। फर्स्ट जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर, तो एडिटोरियल डिटेल्स इफ अवेलेबल, ओके, अवेलेबल है यस 1, अदरवाइज 0 मार्क्स। फॉल्स इंपैक्ट फैक्टर नहीं है तो 1 मार्क है तो 0। ऑथर पब्लिकेशन चार्जेस बिफोर पीयर रिव्यूड, अगर लेते तो नहीं लेते तो 1 और लेते तो 0। फॉल्स इंडेक्सिंग डाटाबेसेस यस 0 2 फॉर नो। इंस्ट्रक्शन टू ऑथर्स एंड इथिक्स पॉलिसी, है ना, कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी को फॉलो करते हैं। पब्लिश रेगुलरली यस 1 मार्क्स, नो 0 मार्क्स। इंटरनेशनल वर्ड इन द टाइटल ऑफ जर्नल, ओके, इन द टाइटल। स्कोप इफ इंटरनेशनल, आपको जाके चेक करना पड़ेगा इसका एडिटोरियल बोर्ड, अगर इंटरनेशनल वर्ड है, ओके, और वो वर्ड के हिसाब से पूरा एडिटोरियल बोर्ड है तो 1 मार्क्स, अदरवाइज 0, एंड देन काउंट द टोटल मार्क्स, ओके। आफ्टर दैट वी विल सम अप, एंड इफ स्कोर इज मोर देन 6 और 6 तो जर्नल इज गुड फॉर पब्लिकेशन, अदरवाइज नॉट, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है, ओके। Thank you very much. I finished my lecture completely.